Okay, so I hope you are already aware that which chapter we are going to start today, right? In the previous class, we have completed My Mother at 66. Today, we are going to start the first chapter of Flamingo, that is the last lesson. Okay? Everyone, please open your books. Hello, am I audible at the back? No? Okay, we can call someone, they'll increase the volume. Because यहाँ से mic ठीक है, I think we need to increase the volume. एक जना आप बाहर जाके बोल दीजिए कि वॉल्यूम इंक्रीज कर दें. हेलो, बेटर? ठीक है, रहने दो. हेलो, इज इट बेटर नाउ? इससे कितना तेज चिल्लाए? Okay, everyone, please maintain pin drop silence. I'll be audible to all of you. Am I audible now? नाटक उतना करना चाहिए जितना ठीक लगे. ठीक है? Yes, boys at the back. Am I audible? Yes. Okay, perfect. So now let's start with our first chapter of Flamingo, that is the last lesson. So as I've told you in the previous class, I'll quickly tell you once again that whenever I'm going to teach you a poem, I will provide you line to line explanation of each and every line, because it's a poem. Maximum it will go around 15 lines, 20 lines, 25 lines. But whenever I'm teaching you a chapter, if it's a prose, then what I will do is I'll provide you a detailed summary of the chapter. So if any question is asked, you will be able to answer that also, and we will be able to complete a chapter in one lecture, because you know we have to complete entire English in next 25 to 26 lectures, right? So we will go with detailed summary of the chapters. It will be very detailed. Don't worry about that. And in poems, I'll provide you line to line explanation. Okay? Clear? Yes. Voice? Increase, decrease. एक मिनट रुक जाइए भैया, इसका वॉल्यूम इंक्रीज कर दीजिए. हाँ. Okay, everyone, please open your Flamingo books. Everyone fast. Hello, hello. Am I audible at the back? Hello, am I audible? Yes, now it's fine, I guess. Okay, so let's start with our first chapter. So the chapter's name is The Last Lesson. Okay, I want pin drop silence in the class. अब हम last lesson की दुनिया में ही चलेंगे. अब हम भी अमांडा की तरह कुछ और इमेजिन करेंगे. जो करंट सिनेरियो में चल रहा है उसकी जगह किसी और दुनिया में चलते हैं. सो इस चैप्टर के सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ जो दो मेन सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं उनके नाम, ताकि यू नो अगर आपसे कुछ भी पूछ लिया जाए उनसे रिलेटेड, सो यू नो अबाउट देयर नेचर, यू नो अबाउट देयर, जैसे बेसिकली हम जिसे बोलते हैं कैरेक्टर स्केच, राइट? सो सबसे दो जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं बेटा इस चैप्टर के, एक है फ्रेंड्स सीरीज की बात नहीं हो रही है, ठीक है? यहाँ पे कैरेक्टर की बात हो रही है जिसका नाम है फ्रेंड्स. ओके, एंड सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है एम हेमिल. एम हेमिल कौन है? एम हेमिल इनके स्कूल में टीचर हैं और क्या पढ़ाते हैं? इंग्लिश नहीं, फ्रेंच. आप बस अपनी लैंग्वेजेस अब अपने पास रखिए, यहाँ ध्यान दीजिए, ठीक है? ओके, सो सबसे दो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स जिनके ऊपर ऑलमोस्ट ये पूरी स्टोरी बेस्ड है, उसमें से एक का नाम है फ्रेंड्स, जो कि उस स्कूल में स्टूडेंट है
जहां पे मिस्टर एम हेमिल पढ़ाते हैं एंड ही इज अ फ्रेंच टीचर. ठीक है, दोनों का कैरेक्टर क्लियर है. ही इज अ स्टूडेंट ऑफ मिस्टर एम हेमिल. ओके, ही इज वन ऑफ द स्टूडेंट्स एंड मिस्टर एम हेमिल टीचर्स French in that school, that too for 40 years. M. Hamel उस स्कूल में कब से पढ़ा रहे हैं? For last 40 years. Okay, and it's a school in a small place, you know, kind of a village आप बोल सकते हैं. Okay, so now let's start. फ्रेंड्स का जो नेचर है वो कैसा है, सबसे पहले उसको समझते हैं. फ्रेंड्स इज वेरी रिलक्टेंट टू गो टू स्कूल. उसे स्कूल जाना बहुत ज्यादा पसंद नहीं है. उसको ऐसी कौन सी चीजें हैं जो बहुत टेम्पटिंग लगती हैं, और दूसरी चीजों में जिसमें उसका ध्यान है उसको समझते हैं वो कौन सी है. आई होप आप रिलेट नहीं कर पा रहे हो, इससे रिलेट नहीं करना है. ठीक है, यस. फ्रेंड्स started for school very late that morning. फ्रेंड्स को जो है उस दिन बहुत लेट हो चुकी थी स्कूल पहुंचने में. His French teacher Mr. M. Hamel had announced a test. उस दिन उनके स्कूल में टेस्ट होने वाला था. Okay, so there was a test in their school and टेस्ट का टॉपिक क्या था? Participles. Okay, participles उनके टेस्ट का टॉपिक था. पार्टिसिपल्स बेसिकली बेटा हम फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स के लिए यूज करते हैं. अगर आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा V1, V2. अरे कौन बोल रहा है? नो मैम. इंग्लिश पढ़ने आए हो, फॉर्म्स ऑफ वर्ब नहीं आती? नहीं हो पाएगा, आनी चाहिए. V1, V2, V3, तो इन्हें हम बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म. थर्ड बेंच. Yes, sit straight, don't talk. So, बेटा पार्टिसिपल के ऊपर जो है एम हेमिल ने उनके स्कूल में टेस्ट रखा था. ठीक है, अब जो फ्रेंड्स है वो काफी ज्यादा लेट हो चुका है. आज टेस्ट भी है, उसका पढ़ाई में बहुत ज्यादा मन वैसे भी नहीं लगता है, दूसरी चीजें वैसे ही इतनी टेम्पटिंग लगती हैं. तो अब देखते हैं कौन कौन सी चीजें हैं जो उन्हें बहुत टेम्पटिंग लगती थी. Poor friends did not know even a single word about them and was very afraid that M. Hamel is going to scold him. Up friends, was he good in participles? No, he did not have any clue. He did not have any clue about any rule of participle. So he was very scared that what's going to happen with me today. Mr. M. Hamel is going to scold me. वो मुझे डांटेंगे क्योंकि मैं आज भी पढ़कर नहीं आया हूं. ठीक है, अब क्या होता है, अब वो निकलते हैं. इट वॉज अ वेरी ब्राइट सनी डे. इट वॉज अ गुड डे एंड फ्रेंड्स थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउटसाइड. फ्रेंड्स का मन था यार अब स्कूल जाके पार्टिसिपल्स का टेस्ट दूंगा. एम हेमिल जो मेरे वैसे ही थोड़े से स्ट्रिक्ट टीचर हैं वो मुझे और डांटेंगे, मार्क्स मेरे आने नहीं है, मैं बोल कुछ पाऊंगा नहीं स्टेज पे. सो व्हाई नॉट आई जस्ट काइंड ऑफ गो आउट. It's very kind of bunk only. Yes, क्यों ना मैं bunk मार लूं and I should enjoy the sunny weather outside. Okay, इसमें कोई ओ नहीं करना, that's a bad thing. ठीक है, yes. अब जो फ्रेंड्स है उसको कौन सी ऐसी चीजें थी जो टेम्प्ट करती थी? दो आपकी बुक्स में क्लियरली गिवन है. I would mention it on the board also. इसने सोचा यार it's a very bright sunny day and the birds are chirping, तो क्यों ना मैं चिड़िया की चहचहाट सुन लेता हूँ, टेस्ट क्यों दूं जाकर? Chirping of birds is more interesting. It was more tempting. अब तुम लोग ये मत करना कि हाँ मैम बाहर जेसीबी की खुदाई चल रही थी और आपकी क्लास थी, छोड़नी नहीं है क्लास. फ्रेंड्स से हम कुछ सीखेंगे लेकिन थोड़ा सा आगे. So yes, he thought it's a bright sunny day. Birds are chirping. Chirping का मतलब पूछ रहे हैं आप? अच्छा वापस बताती हूँ. अरे chirping is very easy. तो चिड़िया चहचहाती है ना सुबह जो आवाज आती है 5:30-6 बजे. So that is birds are chirping. And second, what was more tempting than the class and the test? First was the birds were chirping, so वो बहुत tempting था. And second was
the Prussian soldiers were marching. Soldiers, कौन है ये? चुप. Prussian soldiers were marching. So उनके लिए था कि let me watch them while marching, and it will be more tempting than the test that I am supposed to give on participles. Okay. So in case if the question comes like this, what was more tempting to friends? So now you know. So instead of giving tests on participles, he wanted to watch the birds chirping. He wanted to see the Prussian soldiers marching, as it was a very bright sunny day. Okay. So now you know at least what were the activities which were more tempting than the test. However, now comes the good part. However, Friends was able to fight the temptation and he hurried off to school. So he did not watch all of that. वो वहां पे नहीं रुके, ठीक है? वो वहां पे नहीं रुके और उन्होंने क्या किया? He went to the school and he was in a hurry because he did not want to get late. वो बिल्कुल भी लेट नहीं होना चाहते थे स्कूल के लिए, इसीलिए वो भागते हुए गए. अब नाउ कम्स द नेक्स्ट पार्ट कि उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया. ऑन हिज वे टू स्कूल, फ्रेंड्स पास द टाउन हॉल. और उस टाउन हॉल में क्या था बच्चों? टाउन हॉल में एक था बुलेटिन बोर्ड. डू यू नो बुलेटिन बोर्ड? कौन है नो? सो देयर वाज अ बुलेटिन बोर्ड. और लास्ट 2 साल से, फॉर लास्ट 2 years, जितनी भी न्यूज इस बुलेटिन बोर्ड से आई थी, इट वॉज ऑल सैड न्यूज और इट वॉज ऑलवेज बैड. सो व्हेन ही वाज जस्ट अबाउट टू रीच द स्कूल, ही पास दैट टाउन हॉल एंड देयर वाज अ बुलेटिन बोर्ड ऑन दैट, इन दैट टाउन हॉल. ठीक है, बुलेटिन बोर्ड समझते हैं, जैसे नोटिस बोर्ड टाइप होता है, ठीक है, जहाँ पे कुछ भी अगर इंफॉर्मेशन इवन हमें आप तक पहुंचानी है, so we'll stick it to the bulletin board with the help of bullets, जो वो thumb pins आती है. ठीक है? So when he crossed that, he noticed something unusual over there. Usually क्या होता था? हमेशा कुछ ना कुछ बुरी न्यूज आती थी, बहुत chaos रहता था उस बोर्ड के आसपास. और वो बता रहे हैं कि आज से 2 साल पहले, आज से जितनी भी न्यूज आई थी, it was all bad news. Okay? So now friends thought about what the matter was this time, क्योंकि हर बारी जब बुरी खबर आती है तो he was assuming कि इस बार भी definitely कुछ बुरा ही हुआ होगा. As he was worrying past, as he was worrying very, he was in a hurry, he was moving very fast, he saw that the blacksmith, वो वहीं पे थे और उन्होंने आवाज लगाई. He called out to him, उन्होंने उनका नाम बोला. He called out to him and said there was plenty of time to reach the school. अरे बाबा chill, you can go easily, आराम से चलो और तो भी तुम स्कूल पहुंच जाओगे. तभी फ्रेंड्स को क्या लगा? फ्रेंड्स thought that even this blacksmith is making fun of me. ये मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, ये मेरे ऊपर टॉन्ट मार रहे हैं कि तुम क्या टाइम पे स्कूल पहुंचोगे, तुम तो इतने लेट हो. जबकि ऐसा शायद था नहीं, वो ऐसा कहीं ना कहीं अज्यूम कर रहे थे that you know this person is trying to mock me or you know he is being sarcastic. एक sarcastic comment है मेरे ऊपर. So he started rushing more. वो और जल्दी स्कूल की तरफ भागने लगे, क्योंकि he thought that blacksmith is passing a comment on him. He was trying to make fun of friends. ठीक है? So you know now finally he reaches the classroom of Mr. M. Hemmel. So now it was the time that he has to face his teacher, where he was, you know, bit late also. When friends reached the school, the scenario was absolutely different. हर बार स्कूल में क्या होता है मैं आपको बताती हूँ. Every time whenever he used to reach school, he used to find a lot of students. बहुत सारे बच्चे होते थे. There was a lot of chaos. ठीक है? अब आप ही अज्यूम करो कि आप सब लोग बाहर खड़े हैं कॉरिडोर में, तो बहुत शांति हो, पिन ड्रॉप साइलेंस हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है. तो उनके स्कूल में भी वैसा ही सिनेरियो होता था. काफी शोर शराबा रहता था,
देयर वाज हसल एंड बसल, सब लोग यहाँ से वहां जा रहे हैं अपने क्लासरूम्स की तरफ, टीचर्स आर एंटरिंग द क्लासरूम, स्टूडेंट्स आर रशिंग टुवर्ड्स देयर क्लासरूम, और कुछ ना कुछ काम चलता रहता था, तो काफी सारी एक्टिविटीज होती थी। यूजुअली देयर वाज कमोशन, ये आपके लिटरेचर बुक में वर्ड है, सो यहाँ इसका मतलब है नॉइस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? इट इज नॉइस। तो हमेशा वहां पे नॉइस या फिर एक्साइटमेंट जो है वो हमेशा रहता था। सो यूजुअली देयर वाज ग्रेट नॉइस, देयर वाज ग्रेट कमोशन इन द स्कूल कैंपस, बट एट दैट डे द सिनेरियो वाज एब्सोल्युटली डिफरेंट। उस दिन का जो नजारा था वो बिल्कुल अलग था। ओके, एंड दैट्स व्हाई फ्रेंड्स सेड, I thought that it was a Sunday morning. What did friends think? He thought that that day was that morning. He has compared that morning to a Sunday morning. So now if we ask you why friends or why the author has compared that morning to a Sunday morning, so now you know the reason. Because usual morning was full of chaos, okay, as there'll be lot of hustle and bustle, right? लोग यहाँ से वहां जा रहे हैं तो खूब शोर शराबा रहता था, स्कूल में काम चल रहा है, so there was a great commotion every time, right? But this morning was compared to a Sunday morning, क्योंकि संडे मॉर्निंग कोई स्कूल नहीं लगता था, राइट? छुट्टी, हाँ हमारा लगता है, पता है, सुन लिया मैंने, ठीक है? तो उनके स्कूल की बात चल रही है, ओके, एंड यू आर ग्रोन अप्स यार, अब पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? सो लेकिन उनके स्कूल की छुट्टी रहती थी, ठीक है? आप लोग भी पढ़े होंगे 10th तक, आपकी भी छुट्टी रहती थी। संडे मॉर्निंग तुम्हारा स्कूल लगता था? नाटक कर रहे हैं ना ये लोग यार। एक्स्ट्रा क्लास हर संडे थोड़ी होती है, हर संडे, ठीक है? लेट्स स्टिक टू फ्रेंड्स एंड माय स्कूल, हम खुश हैं। चलिए, सो फ्रेंड्स ने क्या बोला? दैट मॉर्निंग सीम्ड लाइक अ संडे मॉर्निंग, क्योंकि संडे को हमारे स्कूल की छुट्टी रहती थी, देयर वाज नो कमोशन एट ऑल, वहां पे कोई शोर शराबा, कोई आवाज, कोई क्योस, कुछ नहीं होता था संडे को। इसीलिए उन्होंने that's why he compared that morning to a Sunday morning, because there was no commotion, no excitement, no noise at all. Is it clear to you why he has compared it to a Sunday morning? मैं आपको explain करके I'm trying to provide you questions also in between कि ऐसा आ जाता है, so this is what you can write, this is how you can frame. Even if you remember Hindi, I know you are grown ups, you'll be able to frame it in English. I'll provide you good words also, ताकि अच्छा कमोशन याद नहीं रहता है किसी को तो नॉइज लिख देना, एक्साइटमेंट लिख देना। आई एम प्रोवाइडिंग यू 2-3 वर्ड्स सो दैट एटलीस्ट 3 में से कुछ एक तो याद रह जाए, ठीक है? क्लियर? ओके, सो नाउ अब हम बात करते हैं मिस्टर एम हेमल के बारे में। अभी तक हम बात कर रहे थे फ्रेंड्स के बारे में, हु वाज वन ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ मिस्टर एम हेमल. So when friends reached the school, he was very surprised to find that everything was quiet. Usually when the school began, there would be great commotion and activity. Friends had often counted on the commotion to get to his desk unnoticed. ठीक है? लास्ट लाइन को समझते हैं. सो फ्रेंड्स ने क्या सोचा, यार बहुत शोर शराबा होगा, क्लासरूम में मेरे सारे फ्रेंड्स क्लासमेट्स यहाँ से वहां भाग रहे होंगे, ठीक है? तो मैं चुपचाप से, अगर एम हेमल सर खड़े भी होंगे क्लासरूम में तो भी आई वुड गेट अ चांस टू स्नीक इनटू माय डेस्क. मैं फटाफट से अपनी सीट तक पहुंच जाऊंगा क्योंकि वहां पे इतना शोर शराबा होगा. नाउ यू इमेजिन कि आपके फिजिक्स के हेड आपकी क्लास ले रहे हैं, ठीक है? देयर इज पिन ड्रॉप साइलेंस इन द क्लास, ठीक है? क्या? हाँ, ये बोल रहे हैं कि नहीं कर पाएंगे हम भी. सेम वैसे ही फ्रेंड्स का हाल था उस दिन, क्योंकि इट वॉज पिन ड्रॉप साइलेंस इन द क्लास. उसकी एक्सपेक्टेशन क्या थी
कि यार बहुत शोर शराबा होगा, chaos होगा, I'll sneak into my desk, मैं पहुंच जाऊंगा अपनी सीट पे. बट उस दिन ऐसा पॉसिबल नहीं था, क्योंकि उसके सारे क्लासमेट्स, सारे दोस्त जिनके ऊपर वो रिलाय कर रहा था, सब चुपचाप बैठे थे अपनी अपनी सीट्स पर. दे वर ऑलरेडी, दे हैव रीच्ड द स्कूल ऑन टाइम. क्या कुछ बोल रहे हैं आप? क्या आरआरटी सर की क्लास में नहीं जा सकते तुम? ऐसा बच्चे बोल रहे हैं हम घर से ही नहीं आएंगे, ऐसा? चलिए, हाँ, आप अकेले ही ताली बजा रहे हैं, किसी ने साथ नहीं दिया आपका. मत बजाइए. आपकी यूनिटी अब टूट रही है, जो कि अच्छी बात है. पढ़ लीजिए. आपने उस दिन कहा था लास्ट क्लास में, मैम आई वांट टू इम्प्रूव माय इंग्लिश, सो आई एम ट्राइंग. आई एम you will improve. Yes, that's the good spirit. I am trying to help you. I hope that you'll be able to learn it, right? Or you'll be able to grasp it. ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप जल्द से जल्द ये सब सीख पाएंगे. चलिए. So the scenario was absolutely different that day. Now friends का task क्या है? His goal was to reach his desk, his seat. He wanted to settle down in his seat, but there was no clue that day. अब कोई उम्मीद तो है नहीं कि यार कोई बचा लेगा दोस्त, तो वो चुपचाप जाके अपनी सीट पे बैठते हैं. एंड ही वाज वेरी नर्वस दैट मिस्टर एम हेमल, माय फ्रेंच टीचर, इज गोइंग टू स्कोल्ड मी. मुझे बहुत डांट पड़ने वाली है, और ये मुझे बहुत डांटेंगे दैट यू नो आई एम लेट, आई एम दिस, आई एम दैट. और अगर मैंने उससे कुछ पूछ लिया तो मुझे वैसे ही कुछ नहीं आता है, तो मैं तो हर तरफ से मेरी बेइज्जती होने वाली है. पंचुअलिटी के बेसिस पे, मतलब मैं लेट भी हूँ, पार्टिसिपल्स का मुझे एक भी रूल याद नहीं है, टेस्ट में मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, स्टेज पे मैं कुछ बोल नहीं पाऊंगा. ये सब उनके दिमाग में थॉट्स चल रहे हैं. ही वाज वेरी नर्वस बिकॉज ही वाज लेट एंड ही डिडंट नो एनीथिंग अबाउट पार्टिसिपल्स. ओके, सीधे बैठिए. यस, बट नाउ टू हिज अटमोस्ट सरप्राइज, उस दिन वो बहुत हैरान हुए ये देख के कि मिस्टर एम हेमल ने, जो उनके टीचर हैं, उन्होंने उन्हें बिल्कुल भी नहीं डांटा. He did not scold friends at all. And the most surprising thing was that Mr. M. Hamel, who was a strict teacher, spoke to friends kindly that day. How did he speak? He spoke very kindly that day to friends. Okay, so that was very surprising for friends because he was very nervous that I will be scolded. Okay, चलिए अब आगे देखते हैं. Yes. Now, the moment he opened the door and he reached his seat in front of everybody, he was very frightened, but he was very surprised that instead of scolding him, Mr. M. Hamel spoke very kindly and told him to take his seat. Okay. Now, friends notices a lot of unusual things at the school. There were a lot of unusual things. Okay, is this board also visible to everyone? Okay, now I'll start writing over here. So now I'll make you mark, or what I'll do is I'll tell you all the important unusual things noticed by friends. अब unusual क्या होगा? जो पहले होता था उस दिन उसका exactly opposite हो रहा था स्कूल में. ठीक है, पहले आप मुझे बताइए. सबसे फर्स्ट पॉइंट मैं आपको बता चुकी हूँ. व्हाट वाज द फर्स्ट अनयूजुअल थिंग? बताइए. अच्छा यार, one by one, just raise your hand. Who wants to tell? Yes, please. Yes, very good. So the first point that you can highlight or you can write is that usually there was chaos, and instead of chaos, the better word would be there was a great commotion every time, but that day it was absolutely different. There was pin drop silence in the class. That was the first difference. Second, M. Hamel spoke to him very kindly that day, which was not the scenario usually. So you're already aware of the two changes. Now, third thing that friends notices about Mr. M. Hamel was that M. Hamel was
dressed up in a special attire that day. Special attire आप सबको पता है यार कि जो हम स्पेशल ओकेजन्स पे पहनते हैं कपड़े बढ़िया एकदम सूट वूट पहन के. So M. Hamel was there in special attire. And why Friends was surprised? Friends was surprised क्योंकि आज से पहले उन्होंने M. Hamel सर को जब भी स्पेशल अटायर में देखा था तो उस टाइम पे हमेशा कोई स्पेशल ओकेजन होता था. So whenever he was there in special attire, it was always a special occasion, right? But that day he was confused that what is the special occasion? Why is my teacher dressed in a special attire? Why he is all dressed up? Because I am not aware of any such occasion as of now. अरे अपने साथ भी होता है ना, दिवाली है, ईद है, रक्षाबंधन है. आप में से बहुत सारे लोग बिहार के होंगे आई थिंक, हैं क्या? छठ पूजा पे आप लोग, हाँ अरे ये रे हमारे जिन्हें इंग्लिश इंप्रूव करनी है तो आप लोग छठ पूजा पे आई थिंक पूरा अच्छे से तैयार होते हैं, है ना? होते हैं ना? ठीक है, तो दैट इज अ स्पेशल ओकेजन फॉर अस, राइट? सो Friends has always noticed his teacher in special attire when it was a special occasion, but that day he did not know what was the special occasion. Now let's see the fourth unusual thing. Okay, the whole school was so strange that seriousness was prevailing in the atmosphere. सब तरफ किस चीज का माहौल था? सिर्फ और सिर्फ सीरियसनेस का. प्रिवेलिंग मतलब पूरे एटमॉस्फेयर में सिर्फ वही माहौल था, वही चल रहा था. ठीक है, बट व्हाट सरप्राइज एंड कंफ्यूज्ड फ्रेंड्स, एक सबसे सरप्राइजिंग और कंफ्यूजिंग चीज थी दैट व्हेन ही एंटर्ड द क्लासरूम he saw a lot of villagers in the classroom. Yes, and where they were sitting, these villagers were sitting at the last bench. They were sitting at the last benches of Mr. M. Hamel's class. So now this is the fourth unusual thing that I've told you. Even it is asked in 5 marks. I think you are already aware of these unusual things. You can elaborate and you can write. Okay? Yes. So this was the fourth thing that he noticed, that why there are so many villagers sitting in the classroom. And that too in our classroom. We know that it is Mr. M. Hamel's classroom, but we have never seen it. आज से पहले friends और उसके classmates ने ये वाली चीज नहीं देखी थी. And the most surprising thing was that all these villagers were extremely sad. ये सारे के सारे जितने भी गांव वाले वहां पे बैठे थे, ये सब बहुत ज्यादा दुखी थे, परेशान थे कहीं ना कहीं. Nobody seemed happy. कोई भी एक भी गांव वासी या गांव वाला खुश नहीं था. Everyone was sad. Why they all were sad and why these unusual things were happening in the school? So answer to this is there was an order which came from Berlin. क्या आया था? ऑर्डर आया था बर्लिन से, इसीलिए इतना अनयूजुअल सा जो माहौल है वो क्लास में था, स्कूल में था. There was silence in the classroom, right? There were villagers sitting at the back benches and they were extremely sad because there was an order which had come from Berlin. Okay, clear everyone? Okay, now the question that is in your mind, I know, that is what was the order from Berlin? ऐसा उस ऑर्डर में क्या लिखा था कि इतना अनयूजुअल सा माहौल हो गया था, राइट? उसको समझते हैं. So friends was wondering what is the order, why I am not aware. So at that time Mr. M. Hamel mounted on his chair and made the dreadful announcement. Dreadful is bad. बहुत ही जो बुरी खबर थी वो उन्होंने बच्चों को सुनाई. So that is dreadful. Dreadful announcement was made and dreadful is bad. उन्होंने बुरी खबर सुनाई बच्चों को, और बुरी खबर क्या थी आप लोग भी ध्यान से सुन लीजिए, because it might be asked, right, that what was the order from the Berlin? Okay, what was written in the order? So the order had come from Berlin
to teach only German in the schools of Alsace and Lorraine. I'll tell you the spelling of Alsace and Lorraine. Okay. Spelling is different, beta, but the pronunciation is Alsace. It's Alsace, and this is Lorraine, Lorraine. So it's a name of a place. ठीक है, यहाँ पे इनका स्कूल था. क्या ऑर्डर आया था बर्लिन से? बर्लिन से ऑर्डर आया था कि आज के बाद क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ जर्मन पढ़ाई जाएगी. No French will be taught in the schools of Alsace and Alsace-Lorraine. So what they'll be taught? They'll be only taught German. Okay? अब जब वो सिर्फ जर्मन पढ़ाएंगे तो फ्रेंच टीचर का वहां पे कोई काम नहीं था. So the order was basically that only German will be taught, no other languages will be taught. And as M. Hamel was a French teacher, so that means he had to leave the school, right? And it was a very sad moment for everyone because Mr. M. Hamel was teaching in that school for last 40 years. अब कोई इंसान जो काम पिछले 40 साल से कर रहा है, अगर उसे वो काम बंद करना पड़े या फिर उसे बोल दिया जाए आज कि कल से आप ये चीज नहीं कर सकते हैं, तो आप जिस चीज से बहुत अटैच्ड हैं, you will definitely feel extremely bad about it, right? बहुत ज्यादा बुरा लगेगा. इसीलिए वो खुद भी बहुत ज्यादा दुखी थे एंड उनके जितने भी स्टूडेंट्स थे, जितने भी विलेजर्स थे, वो सब भी बहुत ज्यादा परेशान थे. Now the question that can come in your mind or maybe in the exam also, that why the villagers were sitting at the back benches. ठीक है, वो लोग वहां पे क्यों थे? आगे लड़कियां बैठी थी. I will try to give a comeback in literature style only. ये सोच रहे हैं कि ब्लैक स्मिथ हैं जो कमेंट कर रहे थे फ्रेंड्स के ऊपर, है ना, लेकिन हमें कुछ फर्क नहीं पड़ रहा. वो कमेंट है ही नहीं असल में. अब बैठती है तो बैठेंगे, आगे चुप रहती हैं वो. तुम शोर करते हो, बहुत बातें करते हो तुम लोग. ये थर्ड बेंच पे बैठे तो हैं लड़के, आगे ही देखो बातें करते रहते हैं, हंसते रहते हैं. ये लड़कियां इतनी मासूम है, इतने अच्छे से पढ़ाई कर रही है, चुप बैठती है, इसलिए आगे बैठी है वो. अरे चलो, तुम्हारा भी सपोर्ट है. तुम लंबे हो ना, इसलिए तुम्हें पीछे बिठाते हैं. तुम टॉल हो, ठीक है, तुम इनसे ज्यादा लंबे हो क्या? ये नहीं बताना. अरे लड़कियों के पास बहुत अच्छे अच्छे कमबैक है भाई. वो कह रही है कि हमारी हाइट मतलब बहुत सारे लड़कों से ज्यादा है. यहाँ पे एवरेज हाइट इन तीनों की बहुत सारे लड़कों से ज्यादा है. तो बस, अरे लड़के अपनी हाइट प्रूव करने में मत लग जाएंगे. आप लंबे हैं, छोटे हैं, जहां बैठे हैं वहीं बैठेंगे, ठीक है. चलिए, बॉयज इन द मिडल. चलिए, मैंने क्या कहा था, आज हम चलेंगे फ्रेंड्स की दुनिया में, तो वापस चलते हैं उसी में. चलिए, सो बॉयज कर मस्ती मजाक मुझे भी पसंद है, करना चाहिए, लेकिन हो गया अब, ठीक है. 2 मिनट सफिशिएंट है. Okay, so now why everyone was sad and why the villagers were sitting at the last bench? Because an order from Berlin has come and it was mentioned that from now onwards only German will be taught in the schools of Alsace and Lorraine. इनके schools में सिर्फ और सिर्फ German पढ़ाई जाएगी, कोई फ्रेंच और कोई लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी. अच्छा, एल्जास एंड लॉरेन जो ये आज के टाइम की हम बात करें तो ये फ्रांस का ही पार्ट है. और वैसे जितना मुझे याद है ये ना स्विट्जरलैंड और जर्मन बॉर्डर पे पड़ता है, ठीक है, और ये पार्ट है फ्रांस का ही.
तो अभी आज करंट सिनेरियो की बात करें, है ना, लेकिन ये चैप्टर अभी करंट सिनेरियो का नहीं है. ओके, सो नाउ फ्रेंड्स जो है, ही हैज स्टार्टेड फीलिंग सैड सडनली. उसे बहुत बुरा लग रहा है. तुम्हें भी लगेगा बुरा, सुन लो ये बात. उसको भी यही बुरा लग रहा है कि उसने टीचर की बात नहीं सुनी. एग्जैक्टली यही चैप्टर में, सुन लो, ठीक है. नाउ he was regretting that he never learned the lessons when there was time. यही होने वाला है थर्ड बेंच तुम्हारे साथ. क्या आज जब टीचर पढ़ा रहा तब तुम हंस रहे और मैम चली जाएगी 26 दिन बाद, फिर तुम्हें भी रिग्रेट होगा. पढ़ लो. तो फ्रेंड्स जो है वो उस दिन दुखी क्यों था इतना? उसे तो क्या किस में मजा आता था? बर्ड्स को चर्पिंग सुनने में. He wanted to watch the Prussian soldiers marching, but that day he was regretting all his decisions, that when there was time, he never paid attention on studies. He never paid attention on whatever Mr. M. Hamill taught him or in the class. He never paid attention क्योंकि उसको बाकी जो चीजें थी वो बहुत ज्यादा tempting लगती थी. He thought that I have wasted precious time, you know, by looking away from the class. वो खुद ही सोच रहा है, I was busy, yeah, I kept myself engaged in useless activities. What he used to do, he used to seek birds' eggs. वो बहुत बार चिड़िया के घोंसले के जब अंडे देख रहा है बैठ के, है ना, क्लासरूम के बाहर, इस तरीके से वो टाइम पास जो है करा करता था, which was absolutely useless. So वो क्या useless activities को recall कर रहा है? Seeking. अरे इंग्लिश में बोलते हैं भाई, ठीक है. He was regretting that he used to seek, or he was seeking birds' eggs at that time. अरे तुम कहां से आ रहे हो भाई? Okay. The second thing that he was regretting was he used to slide on the Sar river. Sar is the name of a river. So this is the spelling. Okay. So he was regretting that I used to do all these useless things. I have wasted my time by, you know, seeking birds' eggs, by sliding on the Sar river. That was such a, you know, it was an extremely useless thing to do, right? So I have wasted so much of time, and he suddenly started feeling that, you know, he used to think that books were nuisance. Books बिल्कुल बेकार बकवास चीज हैं, ऐसा वो सोचा करता था. But that day he felt that, you know, books and, you know, he and the books were old friends. जैसे कि मानो वो बिछड़े हुए दोस्त हों, और क्योंकि वो इन फालतू चीजों में बिजी रहता था, फालतू की चीजें करता था, इस वजह से उसे रिग्रेट हो रहा था. एंड ही वाज एक्सट्रीमली फीलिंग बैड because that was Mr. M. Hamill's last day in the school. So now if they ask you why we have titled, or why the author has titled this chapter as the last lesson, because it was going to be Mr. M. Hamill's last lesson that day. So now you can elaborate it properly, okay, because you know the chapter quite a lot, that, you know, usually there was great commotion in the school, there was hustle and bustle, and, you know, there were students moving, there was great commotion in the classroom. But that day there was absolute silence because an order from Berlin, you know, had come, and it was mentioned that from now onwards in the schools of Alsace and Lorraine, only German will be taught and no other language, no French will be taught. So because of that, it was Mr. M. Hamill's last day in the school, and he was about to deliver the last lecture. So that's why we have named it as the last lesson. ठीक है? तो अगर आपको कहानी पता है, जो मैंने आपको कहानी बताई, उसी से मैंने ये आंसर अभी के अभी फ्रेम कर लिया. So if you know the detailed summary of a chapter, if you know all these important terms, I am pretty sure that you will be able to do it. आप लोग काफी अच्छे से कर लेंगे if you are serious, अगर आप अभी मेरी बात ध्यान से सुन रहे हैं तो. Now, अब फ्रेंड्स के साथ क्या हो रहा था? His feelings for his teacher were changing. कहाँ वो सोचता था कि यार मुझे तो इतना डांटते हैं, मुझे पार्टिसिपल्स में कुछ नहीं आता, और मेरे लिए तो बाहर की चीजें वो बहुत टेम्पटिंग है, मैं क्यों सुनूं.
ये सारी फीलिंग्स आज उस दिन चेंज हो रही थी. They all were changing. The thought that Mr. M. Hamel was going away and friends would never see him again. ये सब क्यों हो रहा था? क्योंकि that was his last day and फ्रेंड्स जो है वो आज के बाद कभी वापस अपने टीचर को नहीं देख पाएंगे क्योंकि वो जा रहे थे वहां से. एंड दैट डे जो भी उसके मन में फीलिंग्स चल रही थी, he forgot that how cranky Mr. M. Hamel was usually. मैंने आपको कहा था ना बहुत अनयूजुअल चीजें हो रही थी. So what is the meaning of cranky? बता सकता है कोई? यार हम बोलते नहीं, हाँ मतलब चिड़चिड़ा स्वभाव नहीं बोलते हैं. Oh, he's in a very cranky mood today. और चिड़चिड़ा है ना, मतलब नेक्स्ट लेवल मूड स्विंग्स वाली जो चीज बोलते हैं. So क्या डिस्गस्टिंग नहीं, डिस्गस्टिंग नहीं, ठीक है. मैंने दोनों एडजेक्टिव्स यहीं पे लिख दिए हैं. सो अनयूजुअल क्या था? यूजुअली फ्रेंड्स को लगता था कि यार ये कितने क्रैंकी हैं, इनका बहुत ही चिड़चिड़ा स्वभाव है. बट दैट डे ही स्पोक वेरी काइंडली टू फ्रेंड्स, राइट. सो उनके मन में फीलिंग्स इतनी चेंज हो रही थी कि फ्रेंड्स आज के दिन के लिए या आज से जितना भी क्रैंकी बिहेवियर मिस्टर एम हेमल ने किया था वो सब कुछ भूलने के लिए तैयार था. एंड ही वाज फीलिंग एक्सट्रीमली सैड कि आज जो है वो छोड़कर जा रहे हैं हमारे स्कूल को. एंड ही वाज फीलिंग एक्सट्रीमली सॉरी. और अगर आपसे कोई पूछे कि लास्ट बेंच पे जो विलेजर्स बैठे थे वो क्यों बैठे थे, सो उसका आंसर है इट वाज इन द ऑनर ऑफ लास्ट लेसन बाय मिस्टर एम हेमल. वो सब वहां क्यों थे? They were in the honor of Mr. M. Hamel as he was about to deliver his last lesson. That's why the village people had gathered to express their gratitude. ठीक है, वो कहीं ना कहीं दिखाना चाहते थे कि मिस्टर एम हेमल का जो कंट्रीब्यूशन है उनकी लाइफ में या उस विलेज में, उस जगह पे, उसके लिए वो बहुत ज्यादा शुक्रगुजार है. ग्रैटिट्यूड है उनके मन में, वो बहुत ज्यादा थैंकफुल थे उनके कंट्रीब्यूशन को लेकर. बिकॉज आफ्टर ऑल यू ऑल नो दैट 40 years is not a small, or it's not a less time. It's a very big time. So he contributed his 40 years of his life to the students and people of Alsace and Lorraine. और वो सब लोग इकट्ठे क्यों हुए थे? क्योंकि वो अपनी ग्रेटफुलनेस दिखाना चाहते थे कि उन्होंने जो किया है इट्स अ वेरी बिग कंट्रीब्यूशन. सो दे वांटेड टू शो देयर ग्रैटिट्यूड. इसीलिए सब इतने अच्छे से वहां पे आए थे. बट दे ऑल वर सैड. व्हाई दे वर सैड? बिकॉज दैट इज द रीजन. ठीक है, क्लियर है? नाउ व्हाट हैपेंस नेक्स्ट? मिस्टर एम हेमल criticizes himself and the people of Alsace and Lorraine. उन्होंने वहां के लोगों को क्रिटिसाइज किया और खुद को भी. क्यों करा, ऐसा क्यों हुआ, वो समझते हैं. While French was thinking all of it, उसके दिमाग में इतने सारे थॉट्स चल रहे हैं कि मैं तो ये यूजलेस एक्टिविटीज के बारे में सोचता था. उसकी फीलिंग्स चेंज हो रही थी. सो देयर वर अ लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन इन हिज हेड. बहुत चीजें चल रही थी दिमाग में. तभी वो क्या सुनता है इतने उसमें कि उसका नाम बोला जाता है स्टेज से, फ्रेंड्स. सो ही जस्ट रीच द स्टेज. वो जैसे ही स्टेज पे पहुंचा उसको पार्टिसिपल्स के ऊपर बोलने के लिए बोला. क्या आप सारे रूल्स बताओ पार्टिसिपल्स के, क्योंकि टेस्ट तो एक्चुअली उस दिन उसी का था, राइट? तो फंस गया अब वो. ठीक है, उसके मन में इतनी रिस्पेक्ट थी उस दिन. यू नो ही वाज नर्वस. नहीं, खत्म तो नहीं हुई, कुछ उल्टा ही हुआ. सॉरी हो गया. He would have given anything to be able to say the rule loud and clearly. उसका बस चलता तो वो उस दिन अपनी पूरी जान लगा देता सारे रूल्स बताने में. Because he wanted to make that last impression and he wanted to show his love and respect for Mr. M. Hamel. But ऐसा नहीं हुआ. क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उसने कभी पढ़ाई को आज से पहले सीरियसली लिया ही नहीं था. Unfortunately, he mixed up all the words. He mixed up all the words and all the rules of participles and it was a complete mess on the stage. वो नहीं कर पाया perform. So he was very ashamed. वो बहुत ज्यादा शर्मिंदा महसूस कर रहा था. And he just stood holding his desk. वो खड़ा रहा अपनी डेस्क को पकड़ के क्योंकि उसे बहुत ज्यादा शर्मिंदा. He was very
ashamed of what he just did. Mr. M. Hamill would usually have scolded him, पर उस दिन उन्होंने उसे बिल्कुल नहीं डांटा. He did not scold him and he criticized the people of Alsace. उन्होंने एल्जास के लोगों को क्रिटिसाइज किया. क्रिटिसाइज समझते हो आप सब, है ना कहीं उनको रिस्पॉन्सिबल ठहराया इन सब चीजों के लिए. वो क्या रीजन था? He criticized the people of Alsace for their habit of putting off learning for some time in the future. कि कहीं ना कहीं ये लोगों की, यहाँ के लोगों की हैबिट में ही है कि ये चीज हम बाद में कर लेंगे, या कहीं ना कहीं इसको लेट गो कर देते हैं. एंड कहीं ना कहीं उसकी इंपॉर्टेंस जो है लैंग्वेज की, वो उन्होंने नहीं रहने दी. ठीक है, सो दैट वाज द रीजन. एंड सेकेंड, ही ब्लेम्ड द पेरेंट्स ऑफ द स्टूडेंट्स. उनको क्यों ब्लेम करा वो समझते हैं. He blamed the parents of the students, ये बोलते हुए कि I wish वो तुम्हारी पढ़ाई में इंटरेस्ट लेते और तुम्हें कहीं ना कहीं जो चीजें हैं वो समझाते, तो आज तुम्हारे लिए बहुत इजी होता है इसे पढ़ना. आप लोग ग्रोन अप्स हैं, आप लोग खुद से पढ़ते हैं, राइट? दैट्स वेरी गुड थिंग. बट अगर आप छोटे बच्चों को देखेंगे, आपके छोटे भाई बहन अगर होंगे, जो यार 6, 7, 8 तक बच्चे हैं ना, बहुत कम होते हैं जो खुद से पढ़ते हैं. पेरेंट्स हैव टू कंटिन्यूअसली नैग देम, बार बार बिठाना पड़ता है, पढ़ने बैठो, ये पढ़ो, ऐसे करो, ऐसे मत करो. सो कहीं ना कहीं बच्चों को वो इरिटेटिंग लगता तो है, बट इट इज रिक्वायर्ड, क्योंकि छोटे बच्चे खुद से नहीं करते until and unless वो उनकी हैबिट बन जाए. ओके, यू ऑल आर रेज्ड सो वेल कि कहीं ना कहीं आप सारी चीजें अपनी खुद से मैनेज कर रहे हो, राइट? कौन कह रहा है नो? अरे यू आर रेज्ड वेल यार, मतलब आपकी अपब्रिंगिंग अच्छी है. तुम नो क्यों बोल रहे हो? कंफ्यूज हो गए क्या? हाँ, कोई बात नहीं. रेज्ड वेल मतलब आपके पेरेंट्स ने आपको बहुत अच्छी चीजें सिखाई हैं, आपकी अपब्रिंगिंग, आपकी परवरिश बहुत अच्छी है कि आप इतनी मेहनत कर रहे हैं और बाहर से आके इतनी पढ़ाई कर रहे हैं और इतना हार्डवर्क कर रहे हैं एवरी डे, राइट? सो नाउ ही ब्लेम्ड द पेरेंट्स, राइट? व्हाई ही ब्लेम्ड? बिकॉज ही वांटेड, वो चाहते थे कि काश आपके पेरेंट्स ने आपकी पढ़ाई में इंटरेस्ट लिया होता. एंड थर्ड, ही ब्लेम्ड हिमसेल्फ. उनको खुद को ब्लेम करने के रीजन पे तुम्हें खूब हंसी आने वाली है. सो ही ब्लेम्ड हिमसेल्फ बिकॉज यस, मेनी टाइम्स इट हैज हैपेंड कि जब भी उनको अपने पौधों में पानी डलवाना होता था तो वो बच्चों को भेज देते थे, है ना, कि आज तुम एक काम करो, यू जस्ट, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, यू जस्ट गो एंड वाटर माई प्लांट्स. ठीक है, वाटर कर दो मतलब पानी दे दो. So he used to send the students for watering the, okay, so he used to send the students for watering the plants. So that's why he blamed himself. Second reason जो जिसके लिए उन्होंने blame करा खुद को, that was whenever he wanted to go to fishing. जब भी उनको fishing के लिए जाना होता था, मछली पकड़ने के लिए, तो उस दिन वो बच्चों की छुट्टी रख देते थे कि आज तुम्हारी हॉलीडे है. ओके, आई एम नॉट गोइंग फॉर फिशिंग. मैं कोर्स करा के ही रहूंगी. तालियां मत बजाओ. अरे ये कौन है चाइल्ड लेबर? पौधों को पानी देना कौन सा चाइल्ड लेबर है भाई? कितने की हो तुम? व्हाट इज योर एज? व्हाट इज योर एज? 17. 1 year more to go. तुमसे फिर कराएंगे. चलिए, ओके, pin drop silence in the class. It is a bit lengthy chapter, but still we have completed 90% of the chapter. जो major main details थी, I have provided you with everything. Okay. Now only 10% of the chapter is left that we will complete in the next class, and at the same time we'll start with the either the next chapter or the next poem. एक और चीज complete कर लेंगे next class में. Thank you everyone. You all may leave.